जी हाँ, सच पढ़ा है आपने, क्योंकि आप रज़ाग्राफी देख रहे हैं। हमारा तो थंबनेल भी झूठा नहीं होता। गाज़ा में इजराइल की फ़ौज लड़ना नहीं चाहती है। सबूत दिखाऊं? ये देखिए अखबार का सोर्स, आप देख लीजिए। ये इजराइल की ही मीडिया में बात आ चुकी है, जिसके बाद ये दूसरे रिपोर्ट्स में और दूसरे मिडिल ईस्ट की खबरों में आ चुकी है। ये बात रिपोर्ट ये है कि आधे से ज़्यादा जो इजराइल की बटालियन है वो गाज़ा के अंदर लड़ने से इनकार कर रही है। वजह यह है कि उनका कहना है, इजरायली मिलिट्री का, कि ना उनको कपड़े दिए जा रहे हैं, यानी फौजियों की यूनिफॉर्म नहीं दी जा रही है, ना हत्ता कि उनको एक शर्ट भी दी जा रही है, ना उनको कॉम्बैट बूट्स दिए जा रहे हैं, यानी जो फौजियों के कपड़े होते हैं, जूते, कपड़े, शर्ट, ये नहीं दिए जा रहे हैं। साथ में हथियारों की भी कमी है। कहने का मतलब यह है कि इजराइल की सेना के पास अब हथियारों की कमी हो रही है, हथियार उसके पास अच्छे नहीं हैं, और हाल इजराइल की सेना का ये हो गया है कि उसके पास पहनने के लिए यूनिफॉर्म नहीं है, और इजराइल अपने सैनिकों को यूनिफॉर्म तक नहीं दे पा रहा है। इस वजह से इजराइल के आधे से ज़्यादा सैनिक गाज़ा के अंदर जाने से इनकार कर रहे हैं। अब भले ही गूखोर जय जयकार अपने नाजायज बाप इजराइल करते रहे, लेकिन हकीकत ज़मीन पर यही है। उधर यूएई ने ऐलान किया है कि $10 मिलियन हम खर्चा करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे गाज़ा को दोबारा से बनाने के लिए। एक और अमेरिकी एक्टर ने, हॉलीवुड एक्टर ने फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करते हुए वीडियो बनाया और कहा कि 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है, इस कत्ले-आम को कोई रोक नहीं पाया है, और गाज़ा के लोगों के ऊपर हमले लगातार हो रहे हैं, और बच्चों के लिए गाज़ा सबसे बुरा हो चुका है, जहन्नम हो चुका है। In preparing this application, South Africa has paid close attention to the provisions of the Genocide Convention, to its interpretation, and to its application in the years following its entry into force on January 12, 1951. South Africa is highly cognizant of the fact that acts of genocide are distinct from other violations of international law sanctioned or perpetrated by the Israeli government and military in Gaza, including intentionally directing attacks against the civilian population, civilian objects, and buildings dedicated to religion, education, art, science, historic monuments, hospitals, and places where the sick and wounded are collected. Torture. The starvation of civilians as a method of warfare. And other. फ्रांस की पार्लियामेंट में फ्रांस की ही एक महिला लीडर खड़ी होती हैं और अपने बयान में साफ साफ कहती हैं कि वेस्टर्न मीडिया दोगलापन कर रहा है, वेस्टर्न मीडिया इजराइल को ही विक्टिम दिखा रहा है, जबकि गाज़ा इसमें सबसे बड़ा विक्टिम है। सुनिए। Le 29 décembre 2023, l'Afrique du Sud a déposé devant la Cour internationale de justice, en vertu de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, une requête contre Israël concernant les exactions commises par son gouvernement d'extrême droite contre la population palestinienne de Gaza. Le 11 janvier 2024, les plaidoiries de la République sud-africaine ont fait l'objet d'un scandaleux boycott des médias occidentaux et français. Il s'agissait pourtant d'un événement historique, à la portée géopolitique et juridique inédite. L'État, dont la légitimité initiale est fondée sur la conscience du génocide commis contre les Juifs par l'Allemagne nazie et ses complices, est aujourd'hui accusé de le reproduire contre les Palestiniens et les Palestiniennes. Les gouvernements occidentaux, qui n'ont de cesse de donner des leçons de démocratie et de droits humains au reste du monde, font preuve de complaisance à son égard quand ils ne lui apportent pas, comme les États-Unis d'Amérique, un soutien militaire et financier. C'est l'Afrique du Sud, la nation arc-en-ciel qui a subi l'esclavage, la colonisation et l'apartheid, dont le peuple a conquis sa liberté au terme d'une très longue et très dure lutte de libération nationale. C'est ce pays africain qui a sauvé notre honneur à tous et toutes, en défendant à la fois la cause du peuple palestinien, celle du droit international. उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इजराइल को, यानी हम सबको, उत्तर साइड तैयार रहना चाहिए किसी भी मसले के लिए, यानी लेबनान की तरफ इशारा किया है कि लेबनान यानी हिजबुल्लाह
से लड़ने के लिए हमें उधर ध्यान देना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि हिजबुल्लाह कभी भी कुछ भी कर सकता है। नेतन्याहू के खिलाफ एक प्रपोजल विपक्ष की पार्टी पार्लियामेंट में लाने वाली है, जिसमें नेतन्याहू से मांग की जाएगी कि भाई साहब आप हो गए पूरी तरह से फेल 2 अक्टूबर के हमले के मामले में भी, और इस जंग के हालात को और जंग को ख़त्म करने के मामले में भी किसी भी तरह से आप कामयाब ना हो सके हैं। इस वजह से आप जो है रिज़ाइन दे दीजिए। मेरे दोस्तों, इजराइल के एक सीनियर पूर्व अधिकारी ने, और उनको नेता भी समझ लीजिए आप, नेतागिरी में भी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर हम हमास से नहीं जीते गाज़ा में जंग, तो हमारा आने वाले समय में हाल बुरा होगा। אני חושב, ואני משוכנע, שהעם הזה שאלפי שנה חי בלי מולדת, בלי ארץ, חי בכל העולם, הגיע ב-48, ההיסטוריה נתנה לנו מדינה במתנה. זה מתנה חד פעמית. אם אנחנו לא מסיימים את מלאכת הלחימה הזאת, לדעתי יש סכנה קיומית למדינה. ככה אני רואה את זה. וחייבים לסיים את הלחימה, וזה לא קשור בזה שחייבים קודם כל, לפני הכל, להביא את החטופים. כן. इजराइल के कट्टरवादी नेता बेंजीविर ने भड़काऊ बयान देते हुए एक घटिया कदम एज यूजुअल उठाया है और अपनी मिलिट्री से कहा है कि भले ही सामने वाला आपको आतंकवादी खतरा पैदा ना करने वाला लग रहा हो, यानी कोई भी आपको आतंकवादी नज़र आए गोली मार दो। और आप जानते हैं उनकी नज़र में तमाम अरबी यानी मुसलमान आतंकवादी हैं, यानी एक तरह से इसने कह दिया है कि किसी भी फ़िलिस्तीनी को आप देखो तो गोली मार दो, चाहे उससे ख़तरा हो या ना हो। हालांकि इजराइल की सेना ये पहले से करती आ रही है, इसमें कोई नया काम नहीं है। चौथी बार इराक के प्रधानमंत्री ने मांग की है कि अमेरिका हमारे देश से अपनी सेना को वापस बुला ले, हालांकि ऐसा होना नामुमकिन है। उधर इटली, फ्रांस, जर्मनी अपनी मिलकर एक नेवी मिलिट्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी लाल सागर में उनकी दुर्गति हुई है, ऐसे मामलात से बचने के लिए। रिपब्लिकन पार्टी जो अमेरिका की है, उसने धमकी दी है कि अगर हमारा कोई भी व्यक्ति, कोई भी, चाहे हमारी पार्टी का हो चाहे जैसा मर्जी हो, हमसे जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, कोई भी छोटा मोटा अधिकारी हो, अगर इजराइल के खिलाफ बयानबाजी करेगा तो उसको हम पार्टी से निकाल देंगे। उधर मेरे दोस्तों, हमास ने कहा है कि जो मेडिकल हेल्प, मेडिकल किट जो इजराइल भेज रहा है गज़ा के अंदर, उसके अंदर इजराइल ने स्पाई वेयर लगाया हुआ है, यानी जासूसी कैमरे, जासूसी माइक या ट्रैकर, इस तरह की चीज़ें लगाई हुई हैं। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। MQ-9 रीपर अमेरिका का एक ख़तरनाक ड्रोन है, आप इस बात को जानते हैं। ये कतर के अमेरिका के बेस से उड़ा, कतर में जो अमेरिकी बेस है वहाँ से उड़ा, और न जाने कैसे मार कर गिराया है या एक्सीडेंटली गिर गया, ये इराक के एक क्षेत्र में जाकर गिर गया है। लेकिन आप जानते हैं अमेरिका का MQ रीपर कोई ऐसा ड्रोन नहीं है जिसे इतनी आसानी से, मतलब ये कहा जाए कि वो गिर गया, एक्सीडेंट हो गया। ज़रूर इसके पीछे कोई हमला ही होगा। شنو نشوف بعد هذا بس خلاص جبت وين الطفايه تحت وين الطفايه उधर मेरे दोस्तों, अमेरिका ने सैकड़ों हमले कर दिए हैं यमन के ऊपर, कई बार आपने देख लिया है। अब यमन का कुछ उखाड़ नहीं पाए और हुतीज़ ने कह दिया है कि अमेरिका के हमलों से हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो अब थूक के चाटना इसे कहते हैं। बाइडन ने कहा कि हम जो यमन पर हमला कर रहे हैं, इससे हम यमन को कमज़ोर नहीं करना चाह रहे, ना हम ऐसा चाहते कि हुतीज़ को मिटा दें। तो अपनी अम्मा का ब्याह करवाने के लिए दोबारा हमला कर रहे हो क्या उस पर? खैर, आगे बढ़ते हैं। इजराइल का एक कुत्ता, मतलब माफ़ कीजिएगा, इजराइल का एक सैनिक वहाँ से लौटा है गाज़ा से, और अपने साथियों को बता रहा है कि गाज़ा में जब घुसा, मुझे जो कुछ भी दिखा, चाहे इंसान हो, सड़क हो, घर हो, मैं सबको फ्लैट करता हुआ आया, यानी सबको मारता हुआ, मिटाता हुआ, उजाड़ता हुआ आगे बढ़ा हूँ। सुनिए। Yo no tengo
הדינר הראשון שנכנס לעזה, שהדיח כמה שכונות. כל מה שראיתי. 10 ימים אתה פה, אתה כבר במובן גבוה, שלום. רחובות ושכונות. फिलहाल की इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर करेंगे और इस चैनल को रज़ाग्राफ़ी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इंतज़ार कीजिए हमारी अगली अपडेट का। जय हिंद।